हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी हिना और आप देख रहे हैं रिएक्शन बाय हारून। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब हैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और जी आज की ज़बरदस्ती वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान की 2025 में बेस्ट सेलिंग कार कौन सी रही, और सेम एज इट इज़ हम देखेंगे कि इंडिया में बेस्ट सेलिंग कार्स कौन सी रही। इसमें हमें ये भी पता चलेगा कि पाकिस्तान में कितनी क्वालिटीज़ की कार्स हैं और इंडिया में भी जो सुपर पावर्स में सेलिंग में जा रही है। और काफ़ी क्यूरियोसिटी हो रही है इस चीज़ को जानने के लिए कि कौन ज़्यादा आगे है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करती हूँ। एंड ऑफ द वीडियो मैं आपके साथ अपना ओपिनियन शेयर करूँगी और आप भी ज़रूर मुझसे डिस्कस कीजिएगा। स्टे विद मी। Ever wondered which cars are ruling the roads of Pakistan? And from budget hatchbacks to powerful SUVs, here are the top 10 best-selling cars in Pakistan right now. Number 10. Hyundai Tucson with over 3,000 units sold. The Hyundai Tucson is Pakistan's stylish SUV, favorite offering comfort, performance, and sleek design. Ow. Number 9. Suzuki Cultus, the trusted hatchback for Pakistani families. The Cultus sold over 3,100 units, proving that reliability never goes out of style. Number 8. Suzuki Ravi, the workhorse of small businesses. With 3,600 units sold, the Suzuki Ravi stays strong as the backbone of local logistics. Number 7. Suzuki Bolin, a classic choice for commercial use. The Bolin sold more than 4,600 units, praised for its space, utility, and affordability. Number 6. Toyota Fortuner and IMV series need power and durability. Toyota Fortuner and IMV models sold over 5,400 units, perfect for off-road adventures and rugged performance. Number 5. Suzuki Swift, a city favorite. The Swift crossed nearly 7,000 units in sales, compact, agile, and stylish for daily driving. Number 4. Sasgar Haval series, a rising star in Pakistan's SUV market. The Haval lineup sold more than 8,200 units, modern looks, premium feel. Number 3. Honda Civic and City, combined sales of Civic and City reached nearly 14,000 units. Sleek design, smooth ride, Honda continues to impress. Number 2. Toyota Corolla series, Corolla Yaris and Corolla Cross sold over 20,000 units altogether. Toyota's name is still synonymous with trust. Number 1. Suzuki Alto, taking the crown against Suzuki Alto with a whopping 42,000 plus units sold. Fuel efficient, compact, and perfect for every budget. And there you have it, the 10 cars Pakistanis love the most in 2024. Which one's your favorite? Just drop it in the comments, and don't forget to like, share, and subscribe for more car content. See you in the next one. हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि जीएसटी प्राइस कट के बाद अक्टूबर में मोस्ट ऑफ द कार मेकर्स की ईयर ऑन ईयर सेल इंक्रीज हुई है, विद Citroën गेटिंग अ 99% इंक्रीज इन सेल विदाउट इवन एडिंग अ न्यू कार इन इट्स पोर्टफोलियो। एट द सेम टाइम ऐसे 5 कार मेकर्स हैं जिनकी ओवरऑल YOY सेल कम हुई है: जीप, निसान, MG मोटर, Volkswagen एंड Hyundai। इस वीडियो में हम आपको अक्टूबर 2025 की टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स के बारे में बताएंगे और आप ये भी जानेंगे कि कौन सी गाड़ी ने कैसा परफॉर्म किया। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 7,130 यूनिट्स के साथ अक्टूबर में 25th रैंक को ऑक्यूपाई किया है किया सेल्टॉस ने, जो सितंबर में 22nd रैंक पे थी। सेल्टॉस के प्राइसेस अब 10.79 लाख रुपीस से 19.81 लाख रुपीस तक जाते हैं। वी नाउ नो कि किया की नेक्स्ट जेन सेल्टॉस ऑलमोस्ट रेडी है और इसका डिजाइन बोल्ड होगा, ये डायमेंशनली बड़ी होगी और ये एक्सपेक्टेड है कि इसमें नए फीचर्स भी आएंगे। It is expected to launch sometime early next year. And there's another Kia in the 24th place, the Carens and Clavis MPVs, with combined 8,779 unit sales in October. ये सितंबर में 21st स्पॉट पर थी। इसके प्राइसेस 11.08 लाख रुपीस से 20.71 लाख रुपीस तक जाते हैं और अब कारेंस के बायर्स के लिए एक नया ऑप्शन अवेलेबल है, CNG वेरिएंट, जिसका प्राइस 11.77 लाख रुपीस है। ये डीलर लेवल फिटमेंट है, सप्लाइड बाय लोबाटो, जो कि वारंटी के साथ ऑफर किया जा रहा है, स्पेशली फॉर बजट कॉन्शियस फ्लीट बायर्स। सितंबर की 19th रैंक से थोड़ा सा गिर के टियागो अक्टूबर में 23rd पोजीशन पर रही विद 8,850 यूनिट सेल्स। टियागो के प्राइसेस 4.57 लाख रुपीस से 8.10 लाख रुपीस तक जाते हैं। अक्टूबर में टाटा टियागो पे 40,000 रुपीस तक का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट डिस्काउंट्स इंक्लूडेड है। और नेक्स्ट है XUV 700 विद 10,139 यूनिट सेल्स इन अक्टूबर। ये कार भी सितंबर की 16th रैंक से थोड़ा सा गिर के अक्टूबर में 22nd रैंक पे आ गई है।
XUV 700 के प्राइसेस 13.66 लाख रुपीस से 23.71 लाख रुपीस तक जाते हैं और अब इस SUV का फेसलिफ्ट वर्जन भी टेस्ट होते हुए देखा गया है जो 2026 में लॉन्च हो सकता है। स्पाई शॉट्स के हिसाब से नए मॉडल में रीडिजाइंड ग्रिल, ट्विन LED प्रोजेक्टर्स, अपडेटेड बम्पर्स और कनेक्टेड टेल लैंप्स मिल सकते हैं, लेकिन मेजर चेंजेस केबिन के अंदर एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, जिसमें अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ ट्रिपल स्क्रीन लेआउट आ सकता है। सितंबर की 24th रैंक से थोड़ा सा इंप्रूव करके अब ग्रैंड विटारा अक्टूबर की 21st पोजीशन पे आ गई है विद 10,409 यूनिट्स। ग्रैंड विटारा के प्राइसेस 10.77 लाख रुपीस से 19.72 लाख रुपीस तक जाते हैं और अगर आप इस कार को बाय करने का प्लान कर रहे हैं तो नवंबर 2025 में इस पे वेरिएंट टू वेरिएंट 84,000 रुपीस से 1.69 लाख रुपीस तक का डिस्काउंट मिल सकता है, स्पेशली हाइब्रिड और ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट्स पे, जिनके साथ एक्सटेंडेड वारंटी भी ऑफर हो रही है। 11,089 यूनिट सेल्स के साथ टोयोटा की हाई क्रॉस ने अक्टूबर में 20th रैंक ऑक्यूपाई की है। हाई क्रॉस के प्राइसेस 18.06 लाख रुपीस से 31.90 लाख रुपीस तक जाते हैं। ग्रैंड विटारा से सिर्फ ऑलमोस्ट 1150 यूनिट्स एक्स्ट्रा सेल करके टोयोटा की हाई राइडर ने 19th रैंक ऑक्यूपाई की है विद 11,555 यूनिट सेल्स इन अक्टूबर। हाई राइडर के प्राइस 10.95 लाख रुपीस से 19.96 लाख रुपीस तक जाते हैं। अक्टूबर में टोयोटा ने हाई राइडर का एरो एडिशन भी लॉन्च किया, एक लिमिटेड एडिशन स्टाइलिंग पैकेज जो फ्रंट स्पॉइलर, रियर स्पॉइलर और साइड स्कर्ट्स के साथ आता है। ये पैकेज 31,999 रुपीस का है और इसे किसी भी वेरिएंट के साथ ले सकते हैं। 11,738 यूनिट्स के साथ 18th रैंक को ऑक्यूपाई किया है Hyundai Venue ने। इसके प्राइसेस 7.90 लाख रुपीस से 15.69 लाख रुपीस तक जाते हैं और जस्ट नवंबर के स्टार्टिंग में ही Hyundai ने न्यू जेन Venue लॉन्च की है जो अब पहले से बड़ी, ज्यादा वाइड और फीचर लोडेड है। Venue अब HX वेरिएंट नॉमेनक्लेचर के साथ अवेलेबल है और पुरानी पावर ट्रेन्स के अलावा इसमें अब डीजल ऑटोमेटिक ऑप्शन भी है। अगर आप Venue का लेटेस्ट वेरिएंट्स एक्सप्लेन वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। सितंबर की 11th रैंक से नीचे गिर के अब थार और रॉक्स अक्टूबर की 17th रैंक पर आ गई हैं विद कंबाइंड 12,029 यूनिट सेल्स। महिंद्रा थार के प्राइसेस 9.99 लाख रुपीस से 16.99 लाख रुपीस तक जाते हैं और थार रॉक्स के 12.25 लाख रुपीस से 22.06 लाख रुपीस तक। महिंद्रा ने अक्टूबर में न्यू थार लॉन्च की जिसमें डुअल टोन बम्पर, इन केबिन फ्यूल फिलर कैप ओपनिंग, रियर एसी वेंट्स, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट और एडवेंचर स्टैट्स जेन 2 जैसे फीचर्स मिलते हैं। ये अपडेट प्राइमरीली अर्बन बायर्स और लाइफस्टाइल SUV यूजर्स को टारगेट करता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन इट्स ऑफ-रोड एबिलिटी। और सितंबर की 13th रैंक से गिर के अब अक्टूबर में मारुति सुजुकी ब्रेजा 16th रैंक पर आ गई है विद अ सेल ऑफ 12,072 यूनिट्स। ब्रेजा के प्राइसेस 8.26 लाख रुपीस से 13.01 लाख रुपीस तक जाते हैं। GST रेट कट के बाद ब्रेजा को B2 सेगमेंट में सबसे कम बेनिफिट मिलना चाहिए क्योंकि इसमें 1.5 लीटर डीजल इंजन है। फिर भी सितंबर के कंपैरिजन में ब्रेजा के 1899 यूनिट्स ज्यादा सेल हुए। GST रेट कट के हिसाब से ब्रेजा वाज सपोज टू गेट 3.5% GST बेनिफिट, लेकिन मारुति सुजुकी ने प्राइसिंग को कंपेटिटिव बनाए रखने के लिए इस पे अप टू 8.5% तक का प्राइस कट किया, जिसका इम्पैक्ट अक्टूबर की सेल्स में क्लियरली दिख रहा है। अक्टूबर की 15th रैंक पर है XUV 3XO विद 12,237 यूनिट्स, ओनली 165 यूनिट सेल्स मोर देन द ब्रेजा। ये सितंबर में 17th रैंक पर थी। 3XO के प्राइसेस 7.28 लाख रुपीस से 14.40 लाख रुपीस तक जाते हैं। 12,745 यूनिट्स के साथ 14th रैंक को ऑक्यूपाई किया है किया सोनेट ने। इसके प्राइसेस 7.30 लाख रुपीस से 14.10 लाख रुपीस तक जाते हैं। अब नेक्स्ट 2 कार्स मारुति सुजुकी की है। 13,496 यूनिट्स के अक्टूबर सेल्स के साथ मारुति सुजुकी विक्टोरियस ने 13th रैंक ऑक्यूपाई की है। ये विक्टोरियस के लिए पहला फुल सेल्स मंथ था क्योंकि ये सितंबर 2025 में ही लॉन्च हुई थी। अब तक कंपनी को 30,000 बुकिंग्स मिल चुकी हैं जिसमें से 38% शेयर CNG वेरिएंट्स का है। इसके प्राइसेस 10.5 लाख रुपीस से 19.37 लाख रुपीस तक जाते हैं। 12th पोजीशन पर है मारुति सुजुकी इको विद 13,537 यूनिट सेल्स इन अक्टूबर। सितंबर में 14th स्पॉट पर थी ये कार। इको के प्राइसेस 5.21 लाख रुपीस से 6.36 लाख रुपीस तक जाते हैं। लो कॉस्ट यूटिलिटी और फ्लीट फ्रेंडली अपील की वजह से इको कंसिस्टेंटली टॉप 15 कार्स में अपनी जगह बना के रखती है। 14,343 यूनिट्स के अक्टूबर सेल्स के साथ बोलेरो और बोलेरो नियो ने 11th रैंक को ऑक्यूपाई किया है। ये डुओ सितंबर में टॉप 25 लिस्ट से बाहर था जब कंबाइंड सेल्स सिर्फ 2,747 यूनिट्स थी। अक्टूबर में 2025 बोलेरो रेंज लॉन्च हुई जिसमें नए B8 और नियो N11 टॉप एंड वेरिएंट्स, फ्रेश डिजाइन और मॉडर्न फीचर्स देखने को मिले। न्यू बोलेरो के प्राइसेस 7.99 लाख रुपीस से 9.69 लाख रुपीस तक और बोलेरो नियो के 8.49 लाख रुपीस से 9.99 लाख रुपीस तक जाते हैं। ये रीलॉन्च ही प्राइमरी रीजन है इतनी ड्रामेटिक सेल्स रिकवरी का। लेकिन अपनी सितंबर की 6th रैंक से थोड़ा सा नीचे गिर के अब मारुति सुजुकी स्विफ्ट
10th पोजीशन पर आ गई है विद 15,542 यूनिट्स इन अक्टूबर। स्विफ्ट के प्राइसेस 5.79 लाख रुपीस से 8.65 लाख रुपीस तक जाते हैं। मारुति ने इंडिया में 3 करोड़ कार सेल्स का माइलस्टोन अचीव किया है इन ऑलमोस्ट 42 ईयर्स, जिसमें स्विफ्ट टॉप 3 कंट्रीब्यूटर्स में से एक रही विद 32 लाख सेल्स इन इंडिया अलोंगसाइड ऑल्टो एंड वैगनआर। और साथ ही अक्टूबर में 9th रैंक को ऑक्यूपाई किया है टाटा पंच ने विद 16,810 यूनिट्स। ये सितंबर में 5th स्पॉट पर थी। टाटा पंच के प्राइसेस 5.5 लाख रुपीस से 9.30 लाख रुपीस तक जाते हैं। और 8th रैंक पर है मारुति सुजुकी बलेनो विद 16,873 यूनिट्स। इसके प्राइसेस अब 5.99 लाख रुपीस से 9.10 लाख रुपीस तक जाते हैं। और नवंबर 2025 में मारुति सुजुकी बलेनो पे वेरिएंट टू वेरिएंट 42,100 से 47,100 रुपीस तक के डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, जो कैश, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बोनस और रूरल ऑफर्स का कॉम्बिनेशन है। 17,003 यूनिट सेल्स अचीव करके मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स ने सितंबर के 8th स्पॉट से ऊपर उठ के अक्टूबर में 7th रैंक ले ली। इसके प्राइसेस 6.85 लाख रुपीस से 11.98 लाख रुपीस तक जाते हैं। और अगर आप टर्बो पेट्रोल फ्रॉन्क्स लेने का सोच रहे हैं तो नवंबर 2025 में इस वेरिएंट पे 65,000 रुपीस तक के डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, इंक्लूडिंग कैश, एक्सचेंज बोनस एंड स्क्रैपेज स्कीम। 1.2 लीटर पेट्रोल और सीएनजी वेरिएंट्स पे भी 15,000 रुपीस तक का बेनिफिट मिल रहा है। सितंबर के 4th रैंक से महिंद्रा स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो एन आ गई हैं अक्टूबर में 6th रैंक पे विद कंबाइंड 17,880 यूनिट्स। स्कॉर्पियो क्लासिक के प्राइसेस 12.98 लाख रुपीस से 16.70 लाख रुपीस तक जाते हैं और स्कॉर्पियो एन के 13.20 लाख रुपीस से 24.17 लाख रुपीस तक। 18,381 यूनिट्स के साथ क्रेटा अब 5th रैंक पे है। इसके प्राइसेस 10.73 लाख रुपीस से 20.20 लाख रुपीस तक जाते हैं। इंटरेस्टिंगली Hyundai ने अपनी वेबसाइट से टूसॉन को क्वाइटली डीलिस्ट कर दिया है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि ब्रांड अब मिड साइज एसयूवी बायर्स को क्रेटा और अल्काज़र के थ्रू ही टारगेट करेगा। नेक्स्ट 3 कार्स मारुति सुजुकी की है और इनमें से पहली कार है मारुति सुजुकी वैगनआर, जो सितंबर की 7th पोजीशन से जंप करके अक्टूबर में 4th स्पॉट पर आ गई है विद 18,970 यूनिट्स। इसके प्राइसेस 4.99 लाख रुपीस से 6.83 लाख रुपीस तक जाते हैं। और अगर आप इस फेस्टिव सीजन में वैगनआर लेने की सोच रहे हैं तो नवंबर 2025 में वेरिएंट टू वेरिएंट इस पे 47,500 रुपीस से 52,500 रुपीस तक का टोटल बेनिफिट मिल सकता है, इंक्लूडिंग कैश, एक्सचेंज, स्क्रैपेज और कॉर्पोरेट ऑफर्स। नेक्स्ट है अर्टिगा, जिसने ऑक्यूपाई किया है 3rd स्पॉट विद 20,087 यूनिट्स। ये सितंबर में 10th स्पॉट पे थी। अर्टिगा के प्राइसेस 8.80 लाख रुपीस से 12.94 लाख रुपीस तक जाते हैं। और अब मारुति सुजुकी अपने ईवी पोर्टफोलियो में भी अर्टिगा का इलेक्ट्रिक वर्जन इंक्लूड करने की प्लानिंग कर रही है। अर्टिगा ईवी प्राइमरीली फ्लीट बायर्स के लिए होगी और ब्रांड के 2030 तक के 4 मॉडल ईवी रोड मैप का पार्ट होगी, जिसमें ई विटारा और फ्रॉन्क्स ईवी भी इंक्लूडेड है। 20,791 यूनिट्स के साथ सितंबर की तरह अक्टूबर में भी डिजायर ने 2nd स्पॉट पर अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन की। डिजायर के प्राइसेस 6.26 लाख रुपीस से 9.31 लाख रुपीस तक जाते हैं। एंड फाइनली टाटा नेक्सॉन सितंबर की तरह अक्टूबर में भी टॉप स्पॉट पे है विद 22,083 यूनिट्स। नेक्सॉन के प्राइसेस 7.31 लाख रुपीस से 14.05 लाख रुपीस तक जाते हैं। व्यूअर्स, आज जैसे कि हमने देखा है कि इस टाइम इंडिया में जो 2025 की कार सेलिंग्स थी, ऑप्शंस उनके पास ऑलमोस्ट 25 ऑप्शंस थी, जबकि पाकिस्तान के पास राउंड अबाउट 10 थी और 10 to 12 थी। और देखा जाए तो पाकिस्तान में जो मोस्ट प्रॉबली सेल होने वाली कार्स है वो सुजुकी कर्टस, सुजुकी आल्टो, इस तरह की कार्स ज़्यादा वैल्यूएबल है। प्राइसेस इसके काफ़ी रिजनेबल होते हैं, लोग ज़्यादा इनको पसंद करते हैं। जबकि जी इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के पास तो बेइंतहा की वैराइटीज़ कार्स पे मौजूद है। प्राइस की बात की जाए काफ़ी रिजनेबल होते हैं। एंड ये एक चीज़ और यहाँ पर कहूँगी कि इनकी क्वालिटी क्वांटिटी पे कार मार्केट ने बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है, जिसकी वजह से कार्स की सेलिंग रेशो बहुत ऊपर जाती है। और जी देखा जाए तो 2025 में ही सेम ईयर है, लेकिन पाकिस्तान में कार सेलिंग की जो रेशो है वो इंडिया से बहुत पीछे है और इंडिया की बहुत ज़्यादा आगे भी। सो जी गाइस, मेरे लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि कौन सी कंट्री किससे कितनी आगे है और कौन सी कितनी पीछे। बाकी कमेंट में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर योर स्पेशल टाइम। अल्लाह हाफिज़।